translated in English as for seekers of God. भगवान श्री रामकृष्ण का यही था, जीवन का एकमात्र उद्देश्य है भगवान लाभ। So, Mahaprabhu Maharaj, the name was given by Swamiji himself because of his extraordinary spiritual life. उनके आध्यात्मिक जीवन इतनी अद्भुत सुंदर था, इसलिए स्वामी जी ने उनको महापुरुष नाम दिए थे। He lived for many years at Belur Math, क्योंकि राजा महाराज के बाद ही उन्होंने प्रेसिडेंट बने 1922 में। Till his Mahasamadhi in 1934, he was the president. Most of the time he lived at Belur Math only. ज़्यादा समय बेलूर मठ में रहा करते थे। हर रोज मठ का साधु संतों के साथ और भक्त लोग आते थे, सबको साथ जो बातचीत होता था, because he was not a person to give lectures and all that, वैसे उनका नहीं था। he was a person of realization। ये भी एक बहुत ही अद्भुत घटना हुआ। 1926 साल में 1926 the mission organized the first convention of devotees। महाराज उस समय तो प्रेसिडेंट थे। he was sitting in the presidential chair on the dais। तो his presidential speech was being read out by probably Nikhilanand ji, and it was Maharaj, so we must have gave some ideas, लेकिन उन्होंने वसंत महाराज स्वामी परमानंद जी had written, Paramananda was in. So even when it was being read out, he said, "Oh, बसंत भालो लिखेছে, बसंत भालो लिखेছে।" So उनका इतना कोई ये नहीं था, मेरा speech, presidential address, never like that। He was such a person totally immersed in God all the time। So our idea is, when we discuss those ideas, we'll also feel a little more inclined। हम लोग भी ज़्यादा उस तरह जाने का मन करेगा, साधन करने का। Sri Ramakrishna's name, the mantra for this age, japa and meditation। ये युग का मंत्र है भगवान रामकृष्ण के नाम, जप और ध्यान। व्याकुलता, spiritual earning। The Divine Mother has incarnated herself as the Holy Mother। स्वयं Jagat Janani, she has taken incarnation as the Holy Mother। माँ हुई है भगवती। बेलूर मठ, अक्टूबर 1918। A young man, having seen Mahapurush Maharaj in a dream, had informed him about it in a letter। Now he was at the Belur Math for a few days with his permission। कोई युवक महाराज का स्वप्न में दर्शन मिला था, वो महाराज की अनुमति लेके वो बेलूर मठ आके रहा करते थे। One morning when Mahapurushi had just returned from the shrine, the young man saluted him with all reverence and said, "Maharaj, you are kind enough to reveal yourself to me in a dream. Now it is my sincerest desire that you should very graciously initiate me with a mantra." As he spoke, he broke into tears and held Mahapurushi's feet with both hands। बोला, आप तो मेरा सपने में कृपा किए, मेरा मन की बहुत ही इच्छा है आप मेरा दीक्षा प्रदान करें। बोल बोल के बहुत ही रोने लगा। महाराज के दो चरण पकड़ के बहुत ही रोते थे। The boy's eagerness touched Mahapurushi's heart, and he said with affection, "My son,
I bless you heartily that your devotion, faith, and love for Sri Ramakrishna may be ever on the increase. मैं बहुत आशीर्वाद करता हूँ तुमको, तुम्हारा भक्ति ठाकुर के प्रति, तुम्हारा भक्ति विश्वास हमेशा ही बढ़ता रहेगा. एंड यू मे एडवांस टुवर्ड्स हिम. जल्दी से आप उनकी तरह आगे बढ़ पाओ, यही मेरा आशीर्वाद है. See, imagine, I mean, it's a very, even now it makes you feel so happy. Those days संख्या में बहुत कम थे, ज़्यादा लोग भी नहीं आते थे. इतना बड़ा बेलूर मठ, हमेशा एक निस्तब्धता. संध्या के बाद में तो आप इवन अ ड्रॉप ऑफ पिन कुड बी हर्ड. आपको ऐसे कोई सुई भी आप गिराए सुन पाओगे आवाज. सो साइलेंट. And in that atmosphere, Thakur's direct disciple talking to a devotee. आप कल्पना कीजिए दृश्य मन में. सो महाराज उनका जो आंतरिकता देखे महाराज का हृदय गल गया. बोले मैं बहुत ही आशीर्वाद करता हूँ. देखो, दीक्षा के बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं किसी को दीक्षा भी नहीं देता हूँ. महाराज ने तो, ये तो 1918 में तो प्रेसिडेंट नहीं थे ना, 1922 प्रेसिडेंट होने के बाद ही उन्होंने दीक्षा प्रारंभ किए थे. इवन अदरवाइज हमेशा उनका यही सोच था, मैं कुछ नहीं हूँ, रामकृष्ण स्वयं देते हैं, मेरा सिर्फ एक छोटा एक माध्यम बना. सो दैट वाज ऑफ कोर्स दैट आइडिया इज इवन नाउ दैट इज द आइडिया. और गुरु, दैट इज वाई आप जिससे भी दीक्षा लें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि सबको इष्ट भी ठाकुर है, असली गुरु भी ठाकुर है. आप जिसका गुरु रूप में हम लोग लेते हैं, वर्ण करते हैं, इस ओनली एक अनुष्ठानिक रूप में कुछ वही क्रिया के लिए, वही काम के लिए, इतना ही, इतना तक. सो अनलाइक द अदर आउटसाइड, आप कोई गुरु मीन्स एवरीथिंग इज दैट पर्सन ओनली. ये ऐसा कुछ नहीं है. सब गुरु जानते हैं, प्रेसिडेंट महाराज जो दीक्षा देते हैं सब जानते हैं मैं कुछ नहीं हूँ, स्वयं ठाकुर ही सब. मेरा इतना एक कर्तव्य है आपको इतना समझाना, कैसे तुम जप करो, कैसे ध्यान करो, ठाकुर के चरणों में तुमको पहुंचाना, थोड़ा उस दिशा में मैं सहायता करूं, इतना ही उन लोग सोचते हैं. ठाकुर मेरे अंदर एक गुरु बुद्धि मन में अभी तक नहीं दिया उन्होंने. He has not given me that guru consciousness in my mind. मैं तो उनकी दास हूं, नौकर हूं, सेवक हूं, और उनका पुत्र भी हूं. फिर भी मैं तो अभी तक महाराज ठाकुर से ऐसे कोई दीक्षा लेने के लिए मेरा आदेश नहीं आया अब तक. I have not got any mandate from him to initiate anybody. This much only I know, that the name Ramakrishna is the greatest mantra in this age. युग में सबसे जो बड़ा जो मंत्र है वो तो रामकृष्ण है. ये मैं इतना तक जानता हूं. जो भी वो नाम लेते हैं विश्वास से, भक्ति से, श्रद्धा से, मुक्ति बिल्कुल निश्चित है. ये सब तो प्रमाणित सत्य है. रामकृष्ण नाम इतना बहुत सुंदर नाम है युग के लिए. To have liberation, it is enough if one makes japa of his name. नाम जप करने में लिए आपका मुक्ति जरूर मिल ही जाएगा. There cannot be least doubt. To me, it does not appear that there is any need for initiation over and above that.
आपका मन ही मन उसके नाम ले लो। मेरे ख्याल से इसके अधिक कोई अनुष्ठानिक रूप से दीक्षा लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप विश्वास से भक्ति से इतना करो तो पर्याप्त है। There cannot be the least doubt that anyone who will take refuge in the Master with all his being will be liberated. कोई ऐसे संपूर्ण रूप से शरीर तन मन से उनके चरणों में शरणागत हो जाते हैं, वो जरूर मुक्त हो जाएंगे, कोई संदेह नहीं है। He who is Rama, he who is Krishna, has in this age incarnated himself as Ram Krishna for the liberation of living beings. ऐसे कोई मनुष्य की मुक्ति देने के लिए जो राम रूप लेके आए थे, कृष्ण रूप लेके आए थे, अभी राम कृष्ण रूप में यही युग में आए हुए। बिकॉज नॉट दैट सबको साथ ऐसी बात करते हैं, नहीं है। वो देखा योग का इतना ठाकुर के प्रति भक्ति है, विश्वास है, श्रद्धा है, इसलिए ऐसा बात किया। बिकॉज सडनली इफ यू टॉक टू समबडी, क्या समझ पाएंगे, अवतार भी क्या समझेंगे, और ये सब तो मेनी पीपल विल नॉट इवन अंडरस्टैंड। इसलिए महापुरुष महाराज तो बहुत सिंपल, सहज सरल थे, इसलिए सीधा ऐसे बात करते थे। स्वामी जी नरेश वर लिटिल मोर restrained, so to say। इसलिए वो जब पश्चिम देश में भी गए, आई थिंक ओनली कपल ऑफ लेक्चर्स ही गेव ऑन श्री रामकृष्ण। ठाकुर में कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ वेदांती प्रचार किए थे। और वो भी एक पत्र में स्वामी जी लिखा, उनका जो भी कहो, वॉट एवर यू कॉल हिम, डजंट मैटर, उनका जीवन देखो, वो त्याग, पवित्रता, वो भगवान के प्रति जो व्याकुलता, यही आप देखो, उससे उनका मानो, दैट इज इनफ। यू डोंट हैव टू कॉल हिम एज गॉड और एनीथिंग। क्योंकि ऐसा कोई आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ाने के लिए उतना ही पर्याप्त है। क्योंकि हम लोग अवतार के बारे में क्या समझेंगे, व्हाट डू वी नो अबाउट गॉड, मच लेस अबाउट अवतार एंड ऑल दिस, सब सिर्फ शब्द है। इसलिए नारद भक्त सूत्र में कहते हैं, भगवत कृपा कैसे प्राप्त होगा, महत् संगस्त, ऐसे कोई महान व्यक्ति की संस्पर्श में, उनके सानिध्य में, टू द कॉन्टैक्ट और इन द हेल्प ऑफ दैट पर्सन, बाय कीपिंग कंपनी। सो उस अर्थ में भी कोई लेंगे तो वो भी ठीक है। डज नॉट मैटर वो आप उसके भगवान नहीं बोला, नॉट नेसेसरी, लेकिन उनका जीवन का जो महत्व, ऐसा त्याग, पवित्रता, भगवान के प्रति व्याकुलता, वही आप एक्चुअली normally what happens, whatever we constantly think about, that occupies the center stage of our mind। आपके जिसके बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, वो आपका मन का जगह, प्रधान जगह ले लेगा। आप ठाकुर का जीवन का यही सब हम लोग सोचते रहें, अबाउट इस पवित्रता, अबाउट इस लव फॉर गॉड, लॉन्गिंग, कैसे उन्होंने साधना किया, एंड इस डिवोशन, एंड दैट विल रियली अपलिफ्ट अस। आपका जरूर आध्यात्मिक जीवन में आगे ले जाएगा। वो युवक कह रहे हैं, मैं तो जितना संभव तन मन से पुकारता हूँ और प्रार्थना भी करता हूँ। मैं सचमुच ये भी विश्वास करता हूँ स्वयं भगवान है और युग में ये युग प्रयोजन के लिए अवतरित होके आए, ये भी मैं मानता हूँ। आप तो उनका एक शिष्य है, apostles, आप तो अंतरंग के अंदर आप एक है, वन ऑफ हिज इंटीमेट apostles। मेरा दृढ़ विश्वास है आपका कृपा मेरे ऊपर आ जाए, बरसात हो, देन मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, एंड इट विल बी कंप्लीटली फुलफिल्ड। मैं पूर्णता जरूर प्राप्त करूंगा। नहीं छोड़ बोल रहे हैं, आप समझ लिया, आप मेरा बोलो, आप तो यू हैव गॉट हिज ग्रेस, आप इतना उनका नजदीक थे। इफ यू ग्रेस मी, इफ यू shower your grace upon me, my life will be blessed। महापुरुष कह रहे हैं, जरूर तुम्हारे प्रति तो तुम्हारा कल्याण मेरा हृदय में हमेशा ही है, इसलिए मैं इतना बात करता हूं।
व्हाई आई एम टॉकिंग टू यू सो मच। मैं तो जरूर ऐसे में प्रार्थना करता हूँ दैट यू मे हैव द हाईएस्ट गुड, तुम्हारे जीवन में चरम उपलब्धि तुम्हारा हो जाए। मैं जरूर प्रार्थना करता हूँ, आशीर्वाद करता हूँ। आप तो इस विश्वास करते हैं ये जगत का कल्याण के लिए भगवान श्री रामकृष्ण रूप लेके आए, तो उनकी कृपा से तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा। आप चिंता मत करो, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। यू आर इंडीड ब्लेसेड, but it is only as a result of the good deeds of many past lives that one comes to believe in God's incarnation. ये देखो, बहुत जन्म की सुकृति की वजह से ऐसे कोई भगवान के प्रति जो विश्वास, भगवान के कोई अवतार के प्रति विश्वास सहज में होता नहीं। If you in Delhi, probably there are, somebody said the other day there are about 3 crores people. आप बाहर जाके बात करो श्री रामकृष्ण अवतार, तो आपका तो पागल समझेगा, ये क्या बोल रहे हैं। सो इसलिए जो कथामृत में जो मंगलाचरण उन्होंने भागवत कथा से लेके लिखे थे मास्टर महर्षि, वे तो ये रिटन ना, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदातनम भुवि गृणन्ति भूरिता जना। आपकी जो अमृत कथा जो संसार में जले हुए जीवों का एक मलम की तरह, लाइक elixir for those who are burnt in this fire of samsara। कवि मुइयों दरा बहुत ही उसके बारे में महिमा कहा गया। देन सब कलुष, all the evils, all the impurities वो साफ कर देता है। श्रवण मात्र ही मंगल है और उसके साथ हमेशा श्री युक्त है। लेकिन अब प्रश्न जो आ जाता है, वाई देन इन लार्ज नंबर्स, ऐसा हो बहुत संख्या में क्यों नहीं ले पा रहे हैं। उसी थे ओनली पूर्व जन्म में बहुत कोई ऐसे कोई शुभ कर्म किया है, वही सुकृति से आप श्री रामकृष्ण के चरणों में आश्रय लेना संभव होगा। सो दैट इज व्हाट इट सेज। सो महाराज भी करें, ये उनकी कृपा से तुम्हारा मन में ऐसा विश्वास है, वो जरूर आपका सब कुछ आध्यात्मिक जीवन में जो मिलना मिल ही जाएगा। You have that faith already. Why should you worry anymore? तो क्या चिंता क्यों कर रहे हो, तुम्हारा तो ऐसे विश्वास है। Believe me when I say that you will certainly get freed from the bondage of the world. इस संसार बंधन से तुम जरूर मुक्त हो जाए। मैं जब बता रहा हूं तुम विश्वास करो, पुकारते रहो आपका हृदय से और प्रार्थना करो बहुत ही विनय नम्रता से। कीप ऑन कॉलिंग हिम विद ग्रेट ह्यूमिलिटी। आपका विश्वास जरूर वो दृढ़ करेंगे। देखिए, दिस इज अ वेरी वंडरफुल स्टेटमेंट। हम सबको हमेशा है जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में बहुत एक प्रॉब्लम होता है, मन में इतना विश्वास नहीं जन्म लेता है। वी ऑलवेज सफर फ्रॉम लैक ऑफ फेथ इन अवर लाइफ। इसलिए वो कहते हैं आप प्रार्थना करते रहो मन से, मन की गहराई से, हृदय से प्रार्थना करो। आप देखोगे आपका विश्वास भी उनके प्रति दृढ़ होता जा रहा है। So Maharaj gives a wonderful hint to all of us as to how to do sadhana. And your heart will be filled with faith and devotion. आप हृदय में भक्ति और विश्वास से भर जाएगा। So actually it's always a question, no? प्रार्थना करने के लिए उनके प्रति कैसे प्रार्थना करो, मेरा मन में विश्वास नहीं है। So it's like they're kind of complementary to each other.
आप जैसे ही प्रार्थना करेंगे, जैसे ही साधना करेंगे, आपका मन में विश्वास और भक्ति बढ़ता जाएगा। जैसे ही विश्वास और भक्ति बढ़ता जा रहे हैं, आपका प्रार्थना की भी गहराई, विल बी एबल टू प्रे एंड मेडिटेट एंड डू जपा विथ मोर इंटेंसिटी। दोनों परस्पर परिपूरक है। वो पूछ रहे हैं मैं कैसे जप करूं, इसका कोई नियम है क्या? महाराज बोल रहे हैं जप क्या है? मानसिक स्तर से भगवान के नाम लेते रहना पुनः पुनः। लेकिन he says with love, प्यार के साथ। It's not just mechanically taking the name, with deep love। अब बहुत ही प्रेम से भगवान के नाम पुनः पुनः मन ही मन लेते रहो, वही जप है। एंड आप देखोगे ये अभ्यास आपका मन में एक आनंददायक एक अनुभव होगा। ऐसे कोई जप के लिए ऐसे कोई नियम नहीं है। आप हर समय हर जगह पे सर्वावस्था में कर सकते हो, चलते समय, खाते समय, सोते समय, और आप करते करते ऐसे अभ्यास हो जाए आपका सपना में भी जप ही आ जाए। The one thing that matters is love। जितना भगवान का प्यार से आप पुकारते हो, जितना संभव करो। ऐसे कोई नियम नहीं। कोई महाराज तो जिन लोग ठीक से ऐसा दीक्षा लिया, वो तो कुछ दीक्षा का तो कुछ नियम है। आपका दिन में 2 बार, जैसे आपका गुरु बताया, आसन लेके ऐसे कोई निर्दिष्ट जगह पे बैठना करना, वो तो है। उसके अलावा जैसे भी आप हर समय हर अवस्था में उसका नाम मन ही में नाम ले सकते हैं। उसके अलावा महाराज तो उनका कोई ऐसे कोई अनुष्ठानिक रूप में बीज मंत्र के साथ कोई इष्ट मंत्र ऐसा कुछ नहीं दिया। सिर्फ भगवान श्री राम कृष्ण उनका नाम ऐसे लेते रहो बोला। इसलिए बोल रहे हैं कि अलग कोई नियम कुछ नहीं है, हर समय आप ले सकते हो। लेकिन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट इज लव फॉर गॉड्स, उनके प्रति प्यार और प्रेम। The more earnestness you have in your practice, the greater will be the joy। अब जितना सच्चाई से लगे रहते हैं वो साधन में, the more earnestness you show in your sadhana, the more will be the joy, आनंद। एक्चुअली ये सब तो जनरल वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी प्रैक्टिकल फॉर अस। कई लोग हम लोग जब करने बैठते हैं, बट ज़्यादा से ज़्यादा एक नियम है, बैठना है, संस्कार है, अभ्यास है, बहुत अच्छा है। लेकिन अनलेस दिस कंपोनेंट ऑफ लव इज देयर, भगवान के प्रति प्रेम व प्यार वहाँ कोई नाम लेने में जब तक नहीं होता है, आपका एक उसी से जब से थकावट, स्ट्रेन आ जाता है। इट्स अ स्ट्रेन्यूअस एफर्ट, बैठना है, करना, पैर में दर्द, यहाँ भी दर्द, यहाँ भी दर्द। बट वंस यू नो देयर इज अ डीप, आप अंदर एक ऐसा कोई अनुभव करें, सम लव फॉर टेकिंग गॉड्स नेम, का नाम लेना ही एक बहुत ही अच्छा लगता है मेरा, देन यू विल फाइंड दैट यू आर एबल टू डू जपा मोर स्पॉन्टेनियसली, मोर रेगुलरली। जितने भी, जहाँ से भी, हर समय लेने का मन करेगा, ऑल दैट विल कम एज अ मैटर ऑफ फॉलो अप। जैसे आपका पहले कुछ ऐसे ही प्रारंभ हो जाए, वंस यू एक्सपीरियंस भगवान के नाम लेने में, इसलिए कहते हैं ना थ्री टाइप्स ऑफ आनंद। जैसे सबसे नीचे स्तर में है विषय आनंद, ये भोग में, इस सब में, धरती पे जितना जो संभव है उसमें मन हमेशा रहना। द हाईएस्ट टाइप ऑफ आनंद दिस इज ब्रह्मानंद। अब जब ब्रह्मानुभूति, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान हो जाए, वो आनंद जो अविवरणीय, उसके बारे में कहा संभव नहीं है कहना, ऐसा कोई आनंद। इन बीच में एक अवस्था कहते हैं भजनानंद, वह भगवान का नाम लेना ही एक आनंद की बात है। जप करने में इतना अच्छा लगता है,
ऐसा। He dwells in our hearts and adjusts everything in accordance with how the heart acts. वो तो भगवान तो हृदय में बैठते हैं, ऐसे कहते हैं शास्त्र। हार्ट इज द प्लेस वेयर द लॉर्ड रिजाइड्स। तो उन्होंने अंदर ही बैठ के सब नियंत्रण में ले आते हैं। He keeps on regulating everything as you develop this love for God. आप हृदय में थोड़ा भी जन्म ले जाए प्यार और प्रेम, then you find all your activities getting adjusted. because वो तो अंतर्यामी है, अंतर्यामी है, अंदर में बैठे भी है, so he will regulate everything that way. If the heart has the true craving, if you call on him with sincere longing, the result will be directly perceptible. आपका मन में व्याकुलता है, हृदय में व्याकुलता से आप ऐसे ही सच्चाई से ऐसे ही पुकारते रहेंगे, देन आप तो जरूर अनुभव करेंगे इसके क्या फल है। यू विल डायरेक्टली परसीव द इफेक्ट ऑफ सच कॉलिंग ऑन गॉड। लाइक अ चाइल्ड demanding things from its father with tearful eyes, crave for faith, devotion, and love from him. ठाकुर भी कहते हैं आपका भगवान से आप ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं, मैं तो कुछ नहीं जानता हूं, आपका कैसे पुकारना आप मेरा शिक्षा दे, यू टीच मी हाउ टू कॉल यू। तो महाराज भी कहते हैं आप इसी प्रार्थना के माध्यम में, जैसे एक बच्चा अपना पिता से रो रो से मांगता है, आप भी ऐसे कोई रोते रोते प्रार्थना करो। और क्या प्रार्थना करे? वो श्रद्धा, विश्वास, भक्ति, ये सब के लिए प्रार्थना करो। एंड लव फ्रॉम इट, प्यार के भी प्रेम के भी उनसे प्रार्थना करो, क्योंकि भगवान तो सब रस स्वरूप कहते हैं शास्त्र, लेकिन हम लोग कोई रस नहीं अनुभव कर रहे। यू आर श्योर टू गेट दम। ही इज लिविंग and wakeful God, the savior of the fallen, the remover of the sin of this iron age, full of the supreme compassion, the lover of his devotees, and full of love. ठाकुर के बारे में सब तरीका विश्लेषण उन्होंने यहाँ प्रयोग किया। आप ऐसे प्रार्थना करते रहो, क्योंकि वो तो जीवंत भगवान है, हमेशा जागृत है। महाराज जी बुद्ध शांति महाराज आपके अंदर भी कई दीक्षित होंगे महाराज का, बस सच बहुत प्रेमिक साधु थे। डिवोटी यूज्ड टू थ्रॉन्ग। जब महाराज मठ में है मीन्स यू कैन ऑलवेज सी a huge crowd लाइक। और महाराज भी बहुत समय देते थे भक्तियों के लिए। तो महाराज न्यू दैट उनका समय बहुत ही निकट है, उनकी पता क्या है। सो डिवोटीज आर आल्सो फीलिंग सम काइंड ऑफ, सो बहुत ही एक हृदय में एक बहुत ही वेदना लेके, दुख लेके ऐसे बैठ रहे थे। दे वर सिटिंग। महाराज सेज, यू सी, इफ यू जस्ट लव दिस बॉडी इट्स नथिंग। इसके अंदर जो है उसका आप प्यार करो, और ये जाने में भी आपका कुछ भी नहीं है। जो मंदिर में है ना, जाओ, उसका पत्थर मत समझो, और जीवंत जागृत भगवान है, वहां नियमित रूप से आप जाके प्रार्थना करना। This also they were all trained by Mahapurush and others. That was their language always. So Maharaj also says, is living and awakened, जागृत है और जीवंत भगवान है। The savior of the fallen, पतित पावन है सचमुच। The remover of the sins of this iron age, कलयुग में सब कलमश नाश करने वाले हैं। एंड सो उनका जो भक्तों के प्रति कृपा, भक्तों के प्रति उनका प्रेम और प्यार हमेशा ऐसे ही प्रेममय भगवान है, का ऐसी प्रार्थना करो।
Go on calling on him all the time. मान लीजिए यही सब आप ऐसे कोई महापुरुष के मुंह से सुनने में क्या असर होगा आप समझ लीजिए. Not is not hearing from ordinary X and Y Z monks. स्वयं महापुरुष महाराज मुंह से उनके ठाकुर का स्वयं शिष्य थे, कितना नजदीक थे. और इनफैक्ट महापुरुष महाराज समटाइम्स सेज, अभी तो इस शरीर में कुछ भी नहीं है, ठाकुर मैं हो गया, इसमें और कुछ नहीं है, श्री रामकृष्ण छोड़ के. ऐसे कोई महापुरुष के मुंह से एक युवक सुन रहा है, तुम उनका पुकारते रहो. Go on calling him all the time. In addition to this constant remembrance, जो हमेशा जो स्मरण रखना मैं जो बता रहा हूं, इसकी अधिक मॉर्निंग एंड इवनिंग एट अ फिक्स्ड प्लेस एट अ फिक्स्ड टाइम. तो वो ही नहीं, ऐसे कई लोग बताते हैं मेरा तो महाराज बैठने में मन नहीं करता है, समय भी नहीं है, मैं चलते फिरते हमेशा करता हूँ. चलते फिरते हमेशा होता नहीं है. पहले आप नियमित रूप से सुबह शाम बैठने का अभ्यास करो. वो अभ्यास में थोड़ा प्रतिष्ठित होने में भी उसके बाद ही इधर उधर चलते फिरते कर पाओगे. चलते फिरते भगवान की नाम लेना याद रखना बिल्कुल संभव ही नहीं है. बिना बहुत ही एक कठोर साधन के बिना ऐसा रखना संभव ही नहीं है. इसलिए महाराज बोल रहे हैं इसके अलावा आपका नियमित रूप से सुबह शाम एक फिक्स टाइम फिक्स प्लेस, क्योंकि जागा असमय. ये हम लोग का साधना में हम सब महापुरुषों से सीनियर साधु से जो सुना, आप जो करते हैं आपका नियमित रूप से. हम लोग क्या होता है, आज बहुत ही जप कर लिया, 3 दिन कुछ नहीं किया, फिर किया, ऐसे होने में कुछ भी नहीं है. एक ही समय एक ही जगह पे और आधा घंटा कर तो हर रोज करता हूँ. कभी कभी बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो कितना मिनिमम जो करेंगे उसका कम नहीं करेंगे कभी. तब आप एक संस्कार रूप में अभ्यास रूप में बैठेगा, उसी से आप देखेंगे धीरे धीरे बढ़ता जाएगा आपका मन का भगवान के प्रति भी. कहते हैं ना, आप एक जगह पे निर्दिष्ट जगह पे बैठने में धीरे धीरे वहां बैठते ही आपका मन सहज में जप में लग जाएगा. क्यों कहते प्लेस बाय सिटिंग देयर रेगुलरली एट द सेम टाइम, वही समय में वही जगह में बैठने में मन के अंदर वही संस्कार रूप में जन्म लेगा, ताकि वह बैठने में आप जल्दी से जल्दी जप प्रारंभ कर पाएंगे. वो पूछ रहा है महाराज मैं कैसे ध्यान करूं, मैं तो ध्यान करना प्रयास करता हूं, किंतु मैं तो ध्यान क्या नहीं जानता हूं, इसलिए मेरा मन एकाग्र हो नहीं पा रहा है ध्यान में. बस महाराज एंड मेनी अदर्स, इवन होली मदर ऑलवेज टू से, ध्यान तो श्रेष्ठ होता बाद में, अंतिम जो है. पहले प्रार्थना जाप इसे में आप प्रतिष्ठित हो बाद में, तो पहले इसे आंख बंद करने में तो ध्यान नहीं होता है. महापुरुष जी सुंदर ढंग से बोल रहे हैं, देखो पहले पहले इसका थोड़ा मन का एकाग्र करना थोड़ा मुश्किल है. मेडिटेशन बिकम्स मोर नेचुरल व्हेन गेट्स रियल लव फॉर गॉड. भगवान के प्रति मन में जो प्यार जन्म ले जाए, इन आपका जब करना भी उसका नाम लेना, उनका वही चिंतन करना, और ध्यान का माध्यम में भी वही है. इट इज नॉट अकम्पनीड बाय जपा, बट लेकिन वही सोच में विचार में मन डूब रहता है. लेकिन तब तक आपका मन में भगवान के प्रति थोड़ा तो प्यार प्रेम जन्म ले लिया, इसलिए भगवान के नाम लेना, उसके बारे में सोचना, उसका मूर्ति कल्पना करना एक बहुत आनंददायक एक अनुभूति होगी ना जी. वी ऑलवेज, कैसे हम लोग बहुत ही प्यारा आपका कोई ग्रैंड चिल्ड्रन सब है, माँ के आपका बेटा बेटी, हाउ मच दैट वेरी फॉर्म सोचने भी दूर है, लेकिन हमेशा ऐसे कितना अच्छा लगता है. क्यों? देयर इज ए पार्थिव संबंध, is a earthly connection, there is a love. But if that's love in a different form, it's with God, naturally whatever we love, our mind settles down very easily in that. अब जो प्यार करते हैं मन में, वहाँ मन लगाना बहुत सहज है. इसलिए महाराज बता रहे हैं पहले पहले थोड़ा एकाग्र करना डिफिकल्ट है. क्यों?
इट्स ए एफर्ट। आपका तो बहुत प्रयास करके मन लगाना पड़ता है, लेकिन आपका मन में भगवान के प्रति थोड़ा भी प्यार है, प्रेम है, तो देन इट इजीली मन उसकी तरह दौड़ता है, इट रन्स टुवर्ड्स गॉड दैट वे इजीली। एंड बोल रहे ये कैसे संभव है? एज ए रिजल्ट ऑफ हिज ग्रेस एंड वंस कांस्टेंट प्रेयर एंड जप। दोनों है, आपकी तरफ से बहुत प्रयास करना, जप करना, प्रार्थना करना जरूरत है, लेकिन इसके ऊपर उनकी कृपा। मदर ऑल्सो इन ऑल सेइंग्स फाइनली सेज, आप जो भी करो सब कुछ ठीक है, लेकिन भगवान की कृपा वो एक बड़ा एक फैक्टर है, उसके माध्यम में आप उसका सफलता मिलेगी। सो इट्स वेरी क्लियर अबाउट दैट। Instead of starting with meditation, it is much better in the first stage. So sit before the portrait of Sri Ramakrishna like a tearful child with a persistent demand. Pray with earnestness to him who is ever holy, free from passion, lucre, pure, unattached by sin, full of compassion, the prophet of this age and the teacher of the world. So महाराज कह रहे हैं, आप बैठ के तुरंत ध्यान प्रारंभ मत करो, स्टार्ट मत करो। महाराज ऑल्सो वाज ऑलवेज, इवन पर नया नया दुर्गा पुजारी की बताते हैं तो लंबी समय 6-7 घंटा पूजा ना, ध्यान करते करते नींद आ जाती है। बोले नहीं, आँख खोल के माँ की प्रार्थना करो, आप खोल के ध्यान मंत्र अब उच्चारण करो। महाराज यूज्ड टू एडवाइस। It also he says, instead of starting with meditation, पहले आप उनका जो ठाकुर का जो फोटोग्राफ है, चित्र है, तस्वीर है, उसके सामने बैठो, बैठ के जैसे एक रोते हुए बच्चा की तरह, हमेशा एकदम छोड़ेंगे नहीं, दैट काइंड ऑफ विथ फर्मनेस, और प्रार्थना करो इंटेंसली, क्योंकि वो तो हमेशा ही पवित्र है, सबसे मुक्त है काम क्रोध आदि सबसे, एंड ऑल्सो पवित्र, अपापविद्ध, इज अनटच्ड बाय सिन, फुल ऑफ कंपैशन, जो करुणा मूर्त विग्रह है, द प्रॉफिट ऑफ दिस एज, ये युग का जो आचार्य है, ये युग की भगवान है, और उनके ऐसे प्रार्थना करो, देखोगे। प्रे दस, प्रार्थना भी महाराज बता रहे हैं, लॉर्ड यू इनकारनेटेड योरसेल्फ टू सेव द वर्ल्ड एंड यू सफर्ड ऑल काइंड्स ऑफ पेन फॉर द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी। आप तो ये युग में जन्म लिया, अवतीर्ण हुआ, और सबको पाप आप ही ग्रहण किया, एंड इसकी वजह से आपका इतना तकलीफ हुआ भी। यू सफर्ड ऑल काइंड्स ऑफ पेन। मैं तो ऐसे कोई बहुत ही एक बहुत सामान्य कुछ व्यक्ति हूँ, बट इज ए लोली पुअर क्रीचर। मेरे कोई साधनहीन, भजनहीन, ज्ञानहीन, भक्तिहीन, प्रेमहीन, ऐसे कोई मैं व्यक्ति, बहुत सामान्य व्यक्ति हूँ। कृपा करके मेरे अंदर आप भक्ति, ज्ञान, विश्वास, प्रेम, पवित्रता, ये सब डाल के मेरा मनुष्य जीवन सार्थक करो। मैं तो बहुत ही सामान्य हूँ, लेकिन अपना कृपा से मेरा अंदर ऐसा देखिए आप भर दो। बी ग्रेशियस इनफ टू रिवील योरसेल्फ इन माय हार्ट एंड ग्रांट मी योर विजन। मेरे हृदय में आपकी ऐसे कोई आप रह करके आपका दर्शन मेरा मिल जाए, ये आप कृपा करो। महाराज उसके बता रहे हैं, आपकी कोई संतान, आध्यात्मिक संतान मेरा ऐसी प्रार्थना करने के लिए शिक्षा दिया। महाराज इज एक्चुअली ठाकुर डिसाइपल, वन ऑफ योर ओन स्पिरिचुअल सन्स टॉट मी टू प्रे लाइक दिस। मेरे ऊपर आप कृपा करो, प्लीज टेक पिटी ऑन मी, ऐसी प्रार्थना करो। महाराज बोले, इफ यू गो ऑन प्रेइंग लाइक दिस,
His grace will descend. आप ऐसे ही प्रार्थना करते रहो, आप निश्चिंत रहो, उनकी कृपा आपके रूपे वर्षित होगा ही होगा. To be assured of that. So now we'll have a short break for 15 minutes and we'll continue. You can have a little water or just